Hello, friends, a very warm welcome. And in this session, we are going to take up again two very important main themes, and rest of the themes will be additional ones. Let's start with understanding that we have already discussed in some details about food processing, and it is one of the, I should say that, a procreator towards the goal of achieving Viksit Bharat. Very, very important. Let's try to see that how, recognizing this sector's potential, government has launched several initiatives to boost food processing industries. Can you name the most foremost and the most important scheme, Mansi? So the food park. There, which is there to create modern infrastructure with efficient supply chain management from farm gate to to retail outlet. What is the name of that scheme? So in food processing industry particularly. Yes, yes, the most foremost and most important scheme, which is there to boost, or you can say, which is there to create infrastructure, which will be including even mega food parks, even cold chain, preservation of infrastructure, and everything else. So, what is the name of that scheme? So I am not able to recall. Ashik? But So PM formulation of micro food processing industries, Uh, along with other schemes are there. there is Like for one. example, There is Kisan one. Sampada. Yes, yes, yes. Then Basically, if you would have understood what exactly I was asking, when we say the word sampada, as you are saying on your own, it includes all these things. So Pradhan mm, Mantri Kisan Sampada Yojana is the one. Under that, I agree, some other schemes like Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprise, PMFME. So that is also important. Production linked scheme is also important. And Agri Infra Fund. one district, one product is also important. Wonderful. Mansi, name two bodies which are contributing to the stabilization of agricultural incomes and they are enhancing market opportunities. so one would be APEDA, and so we can talk about FPOs, farmer producer organizations. Okay, Ashik? So NAFED, NAFED, Yes. and for tribal we can say Trifood is there. Trifed, What Trifed. is the full form of NAFED? So NAFED full form is we have already discussed. I know so. The National Okay, Agriculture agriculture. Food Processing, I think नहीं फूड प्रोसेसिंग उसमें नहीं है, उसमें food processing. डिफरेंट अपेडा में आता है. Hmm. So that is how we have to understand and we have to नेशनल एग्रीकल्चर National कोऑपरेटिव Agriculture मार्केटिंग फेडरेशन. Cooperative Marketing Federation. Correct. This is मतलब an कोऑपरेटिव मार्केटिंग है नहीं, वो साइलेंट है. Cooperative Marketing Federation. Silent. यहाँ नहीं हाँ है silent. हाँ में मतलब नहीं है लास्ट में silent. हाँ. And another is NABARD. So NABARD complements because NABARD is a financial institution which is complementing the rural agriculture and rural development because by providing financial assistance. And one key consumer behavior, Mansi, which is very much intricately linked with the food processing industry. One consumer behavior of the present times. So we can talk about the linkage or the recurrent demand regarding the FMCG products. या प्रोडक्ट्स की डिमांड तो है, डिमांड तो ड्रग्स की भी होती है, बट द माय पॉइंट इज व्हेन वी से सर कंज्यूमर बिहेवियर. So consumer behavior will mean consciousness towards processed and packaged foods. सर जब हम बोलते हैं रागी मिलाओ, मिलेट मिलाओ, ये मिलाओ, so food processing industry have to nudge itself towards better health markers. So एक बहुत important point हो जाता है ये. So I agree what you said, but I was asking about the second layer. Okay, name one board, Ashik, name one board of a certain commodity which is an example of promoting food processing industries. सर्टेन कमोडिटी कमोडिटी नहीं हॉर्टिकल्चर नहीं, बोर्ड. अरे हाँ, हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, बिल्कुल हो सकता है, एक हाँ, कोई भी आप कम्युनिटी बताइए ना. टी हो गया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, हाँ, टी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड है. स्पाइसेस बोर्ड. अब टी में आप क्या प्रोसेसिंग कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग? ऐसा कोई सब टी ऐसा में
if the कर tea तो है ही, leaves, हाँ, कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट गो फॉर कोकोनट, गो फॉर हनी, गो फॉर टर्मरिक, बोर्ड है ना, इन सबका भी तो बोर्ड है, व्हाटएवर आई सेड. हाँ सर, या ओके, इफ आई से दैट, हाँ प्लीज. नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, NDDP. NDDB, yes, definitely correct. If I say that India to become Viksit Bharat in next 25 years, after 2024, even less than 25 years, I should say. So we need skill development, we need agri-business development, and in this, we have to understand that what role green revolution played in the last 5 decades. Agriculture production and productivity both had raised considerably. So, what is India's position in terms of pulses and milk, Ashik? In milk, sir, we are the largest producer of the milk. In pulses, we are the largest producer of pulses also. But Mansi, also we import pulses. what is our position in vegetable, fruits, wheat, and rice? So I think we are the second largest producer. You think or you know? So I'm not sure about it. So second largest producer. So in Okay, vegetable, yeah, we are largest producer. yes, large, second largest. हम And रहेंगे second vegetables, largest. fruits, हाँ, second largest. Whatever I said, vegetables, fruit, wheat, and rice, we are second. Second largest. Huh? And in terms of cereals and eggs, we are the third one. Third one. But once you tell me how much percentage of processing is taking place presently in agricultural output? Around. Be quick. It would be very less. So Don't give me English literature answers. When I say this one, speak like a person who knows a bit of economics. so it can be somewhere between 10, around 10%. Around 10%, you are correct. More confident you are, less are the chances of behaving irrational. Ashik, tell me what is the contribution to GDP of when we say food processing sector, which had been okay. Before that, please tell me at what growth in terms of GDP it has been seeing, annual growth rate. कितना है? So annual growth rate, Around? it would be 10 to Around 14%. 8 to 10. 8, it's around 8 to 9%. And the demand is increasing, obviously. And when we say, in terms of total number of persons engaged in the registered food processing sector, Mansi, in the registered food processing sector, how many number of persons or what is the employment? So around 20% would be, I think, formal Percent, sector. आप मुझे वैसे बता दीजिए. Registration. So 20 the lakh, 50 lakh, 1 crore, 2000, something like that. तो इसमें तो गैस करना मुश्किल है. फिर भी अंदाजा. So around the formally registered है तो it can be somewhere close to 25 lakhs. Yeah, it is around, you can say 15 to 18 lakhs. That's what we can say. Around 20 कह लो आप, चलो 20 के आसपास हम कह सकते हैं. Actually, can you tell me which is the ministry which is implementing central sector schemes like Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana? Which is the ministry? Kisan Sampada, sir, Ministry of Agriculture. Ministry of Kisan Food Sampada. Processing Industries. Food. There is a ministry called हाँ Ministry sir, of Food. food processing industry. Can't see such blunders. And this Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises, which believes in vocal, being vocal, vocal for local. That's what we can say. What is the outlay? What is the outlay for this scheme from 2020 to 2025? कितना outlay? अंदाजा? So 1 lakh crore approximately, 1 lakh 50. 10,000 करोड़. ज्यादा बता दिया आप. कैसी है? हाँ, इतना ही है. Food processing And industry. link with that is our one district one product, जिसमें हम बात करते हैं कि 2 लाख enterprises को हम benefit पहुंचाएंगे, जिसमें self help groups बाद में आएंगे, individual beneficiaries आएंगे, FPOs आएंगे. That's what. Even skill development initiatives are being taken up
So, there is something called Food Industry Capacity and Skill Initiative. Food Industry Capacity and Skill Initiative is very, very important. National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management. कहाँ है ये? Mansi, where is National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management? Where it is? Can you take a guess? So can be in Gujarat या Maharashtra. अच्छा, औशिक? तो यूपी में होना चाहिए अच्छा, okay. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देखना होगा तो What is the role of NABARD in food processing, storage, and storage infrastructure? What is the role of NABARD? Ashik. So NABARD gives grants, loans, as well as it helps in capacity building of the institution. Subvention, interest subvention loans it gives them, the NABARD. Whole ecosystem is driven by NABARD से. Okay, हाँ ये तो right है. और कुछ? Sir, refinancing major होता है. Financing तो like direct lending नहीं करता है NABARD. Okay. Refinancing is the main objective. फिर ब्रांडिंग हो गया, सब वेयर हाउसिंग हो सकता है इसमें, एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, रेगुलेशन, हर चीज है और जो हमने बात की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो मैनेजमेंट है, दैट आई बिलीव इट मस्ट बी इन तंजावुर, तमिलनाडु. It should be in Tamil Nadu. And most importantly, with respect to NABARD, you must bring, rather than a casual overview, you must bring the idea of food processing fund. There is something called food processing fund, which is having a corpus of 2,000 crores. And from therein, you should take your whole understanding, bringing the idea of mega food parks and industrial parks, agro processing clusters, APCs. They are very, very important. So goal of the NABARD is to make sure that capacity is created. There must be central processing centers and milestones must be achieved in a time-bound manner. That is what it requires. Mega food parks, industrial parks, and as I just said, they are very, very important. State governments will be playing an important role. There will be SPVs, there will be federations, there will be partnerships, and that is how you have to bring. There will be state-owned entities like state agriculture marketing boards. This is also very important. Another key word here is warehouse infrastructure fund. That is also very, very important in order to make sure that we achieve our milestones, and fund is there. Ashik, if we have to bring revolution in the tea industry in Assam, so can you suggest one measure in the contemporary times? So Department of Northeast region, they are focusing on branding of the tea. First is GI tag is there. Second would be focusing on diversification of tea. For example, from Northeast region. For example, black tea, even other kind of product can be promoted. So second would be regarding suitability of the climate as well as the labor productivity. Very good. Then so you can speak about AI, bringing the role of AI. Climate resilient tea cultivation. Climate resilient. एक पॉइंट बोला, अलग से हो गया काम बस. Must love innovative things. So food processing sector is a very, very emerging, and one can say it is very, very demanding also at the same time. So that is going to help rise basically with time, and that is how the future outlook is also there. Now, if I talk about India's food regulatory landscape, month, what will be the name of certain key bodies or institutions you will bring? Please tell the name. So the
most important one is the Food Safety and Standards Authority of India. One, very good. Which Then year it came? FSSAI was enacted in which year? I think so 1997. 1997, 2006. 2006. So, what is the role of FSSAI? FSSAI, Ashik? The food safety standardization, consumer awareness, and also inspection of the food, food inspector role. Which food? Which food? Domestic The food, food, domestic food, imported international. food? So the food which is being manufactured in India and it is exported, as well as the food that is imported also in India. So all FSI standard You equivalent. you people must understand that it is only responsible for domestic and imported food. It is not responsible for exported food. Export of food means the food which is exported, food products which are exported, their regulation lies with Department of Commerce. Hmm. Very important. So the mandate of FSSAI is to formulate science-based standards. It has to regulate manufacturing, import, distribution, and sale. That is what is the role. Organization structure, standard setting process, enforcement mechanism, capacity building initiatives, all these things are there. Very soon we will have a session by Joint Director FSSAI, North India, if I am correctly telling the post. We will do it so that you can understand. Hmm. Let's see. Mansi, so national food control systems are designed to meet specific criteria. So what according to you Indian system के जो key parameters होने चाहिए क्या है वो बताइए. So regarding regulation and standardization. So one would be that they are not adulterated, so safety standard in terms of consumption that is met. That means protecting public health. हाँ जी, protecting public health. Then एक so in point terms of दूसरा adulterated आपने बोल दिया, adulterated और misleading हो गया दूसरा. तीसरा so second, fair market practices. okay, so we have a resilient system, that's what we say. Can you name certain ministries which are part of this regulatory process as far as FSSAI is concerned? So one would be again can be Ministry of Agriculture and Farmers Welfare would be Good. there. Okay, one. So then Ministry of Finance, I think it should also be a part. Okay. Then be quick. As we talk about Department of Commerce, so Okay. and so I think Okay. Add. So regulatory board is a consumer protection authority because of the consumer rights regarding the food processing industries. Industry I'm asking. Ministry of Agriculture bola, Agriculture and Farmer Welfare bola. But I'm surprised why not Mansi was talking about Ministry of Health and Family Welfare. Why it was not bringing Ministry of Food Processing Industry अभी तो बोला था. Why it is not bringing Ministry of Commerce चलो बोला. Ministry of Fisheries, Animal Husbandry. And then you can talk about APEDA. And along with APEDA there is Marine Product Food Development, MPDA. That is also very important. So all these you have to bring like in a quick manner. There are export inspection council, and as I told you, spices board, tea board, and others are also there. Coffee board is there, and rest of them are there. So resilient food regulatory system. It is very important. Maternal and child safety is involved. Then Ministry of Commerce में आपका ये अपेडा एमपीडे ये सब कमोडिटीज आ जाएंगे. Then essential commodities आपके लिए अफोर्डेबल हो और सेफ हो along with consumer protection, that is Ministry of Consumer Affairs. Ministry of अभी मैंने बोला fish animal and dairy products के लिए Ministry of Animal Husbandry वाला आ गया. So every ministry is actually playing an integrated role. These all more than 7 ministries I should say. Ministry of Women and Child, Ministry of Food Processing Industries, Ministry of Agriculture, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Commerce, जो अभी हमने बात किया, Commerce and Industry.
So we have to understand and bring them on table in one quick go. That's only can help you to understand that our national food control system is very much standardized and very much forward looking. Otherwise, how it will be able to contribute to the nation's growth? That is very important. FSSAI is constituting number of scientific panels. Now tell me, if FSSAI has to constitute scientific panels, Ashik, so which organizations can contribute to it? Yes, sir. So CSIR, Scientific हाँ, Panel CSIR हो, scientific फिर ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो सकते हैं, हाँ हो सकता है. फिर एक और पढ़े थे सर, इक्री सैट, एरिड, वो सब वो भी भी हो आ सकता सकते है, हैं इसमें. बिल्कुल हो सकता है. और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ICMR भी हो मेडिकल सकता है, मेडिकल रिसर्च हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट एग्रीकल्चर What about SAU. NIFTEM? As I told you, food technology entrepreneurship अभी हमने बात किया था, तंजौर वाला, वो हो सकता है. हाँ, उसको एक ऐसी बॉडी मानसी जो औशिक को सबसे पहले बोलनी चाहिए थी और उसने नहीं बोली, एंड ही मस्ट बी पेनलाइज्ड फॉर इट. तो साइंटिफिक पैनल में से आई थिंक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया आना चाहिए वो सबसे तो आना पहले. ही चाहिए था, लेकिन एक ऐसी बॉडी जो औशिक को बोलनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं बोली, ना बोल के पाप किया. साइंटिफिक, हम मूर्खों की सभा नहीं है. सर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी. कमेटी है माँ, कमेटी है. सर आपने अथॉरिटीज पूछा, अब मैंने अथॉरिटी. इंस्टीट्यूशन बोले, इतने सारे इंस्टीट्यूशन बोले, इसने एक इंस्टीट्यूशन जो अब पाप किए से तो IIT हो सकता है इसमें. ये बात अगर जागा, जितना देर से जागा उतना खामियाजा भुगत चुका है, लेकिन अब ट्रैक पे है. बिल्कुल पाप किया, इसने पकड़ा कि पाप पाप करोगे यहीं हाँ भरोगे. सर, वो भी उसे भी रबड़. हाँ सर. So that's what we are saying, that there is a need or issue based proposal, then there is scientific panel, then there is committee, they are interacting with each other, final draft comes up, then it goes to food authority, then regulations are framed, regulation is going with the ministry approval देगी, stakeholder से चर्चा की जाएगी, and finally वो notification में आएगा. So more than 8 steps are there. First there is need, then there is panel, then there is committee, then the food authority के साथ पूरा एकदम टू एंड फ्रो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज होगा, फिर फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशंस होगा, फिर मिनिस्ट्री के साथ अप्रूवल जाएगा, स्टेक होल्डर्स बात करेंगे, और स्टेक होल्डर्स are also part of draft notification when the issue is discussed in the beginning also. Everywhere WTO भी आएगा इसमें, WTO members. So much vibrant work. मानसी, कितने मिलियन फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं इंडिया में आज की डेट में जो फूड सेफ्टी नेटवर्क का पार्ट है? अराउंड तो बिजनेस ऑपरेटर्स. हाँ, क्योंकि हमारे पास फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम है ना, जो आई इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. क्लोज टू 5 मिलियन. वेरी गुड, 6 मिलियन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं. 5 भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं. So, going further with this idea, when we have to enforce the machinery and regulatory, actually machinery and regulatory oversight is very important. In that context, I ask you how many food business operators are there, and there is always risk based inspection systems are there. कभी हम बोलते हैं कि हम रात को हमने अमूल की आइसक्रीम मंगाई, उसमें मिलीपीड निकला, कभी हम बोलते हैं कि कॉकरोच भरा हुआ निकला, कभी हम कह रहे हैं मैकडोनल्ड के आपने बर्गर खाया और साथ में कॉकरोच भी खाया. ये मतलब बहुत खतरनाक वो है. तो एंड देन एंड एट टाइम्स वीडियो आल्सो वायरल कि भाई कि ब्रेड बनते देख लो तो ब्रेड ना खा पाओ. ठीक है ना, ये वाली बात. तो बुद्धि लगाइए, आगे जगिए, तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो उसको कर ही नहीं पाएंगे. तो हाउ टू औशिक मैनेज, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रोमोटिंग हमने बात करी ली. फूड सेफ्टी कैन नॉट बी अचीव सेल्फ कंप्लायंस,
होना ही चाहिए, क्योंकि आप बार बार वो नहीं कर सकते। इसीलिए सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी हैं। इसीलिए थर्ड पार्टी इकोसिस्टम भी है, खुद ही करके थर्ड पार्टी से भी ऑडिटिंग होता है। इसीलिए हाइजीन रेटिंग स्कीम भी है, इसीलिए बेकरी के लिए, मीट के लिए, डेयरी के लिए, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। एफएसएसएआई इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल जो इन चीजों को करने के लिए। सो आई वांट टू आस्क यू, जैसे अभी हमने बोला फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम भी है एक, फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम जो इंटीग्रेटेड है, उसमें कस्टम्स का रोल भी है। हम अभिनंदन को भी बोल सकते हैं, कभी अगर कुछ सीखा हो तो लेट्स आस्क हिम। तो food testing ecosystem and surveillance is very very important. Food testing ecosystem and surveillance. So that is why the healthy outside, when we speak about, they start from inside only. So food certification is very very important. Okay, Mansi, what is food fortification? आप बताओ, फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? फोर्टिफाइड फूड क्या है? हम बार बार बोलते हैं ये राइस फोर्टिफाइड है, गरीबों को बांट दिया, स्कूल में बांट दिया, राशन में भी फोर्टिफाइड की बात होती है, तो क्या है वो आखिर? So addition of like micronutrients which are deficient naturally in the cereals and कौन से grains. For कौन से example, नाम in बताओ? iodized salt we talk about. In चलो आयोडीन हो गया ना इसका मतलब। golden rice, हाँ जी, golden rice we talk आयोडीन हो गया एक, और zinc, magnesium. जिंक मैग्नीशियम हो गया, और कौन से विटामिन? So सब B12, बी फोलिएट, हाँ, ए एंड डी। बी कॉम्प्लेक्स, डी, हाँ डी भी हो सकता है सर, ए भी हो सकता है। चलिए, तो इसीलिए रोल है सबका अलग अलग। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल का रोल अलग है, जिसका काम है सर्टिफाई करना एक्सपोर्ट के लिए फिट है कि नहीं है। अपेडा, जिसकी आप इतनी देर से बात कर रहे थे, अपेडा मानसी कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? So I think it should be under the Ministry of Commerce and Industry क्योंकि ओके, export से थिंक related. मत किया करो, बताया करो, उसी में है। हम्म And similarly is the role of MPDA. It MPDA, औशिक, MP जो मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका स्टेटस क्या है? जैसे हमने बोला अपेडा इज एन एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही है मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्या है मतलब, उसका स्टेटस का? आई मीन टू से इट्स व्हाट, लाइक इट्स autonomous body, or it's a स्टैट्यूटरी बॉडी से statutory body. Okay, statutory body, correct. It is set अपेडा, up by an act of parliament in 1972. नोटिस। And that is how tea board is also very important. Tea board is mandatory for export of tea. मतलब एक्सपोर्ट करना है तो उसका होना ही चाहिए। And there is a license which they are given. Coffee board is, that is why, so coffee is also mandatory for exporting, and it also works like that. And similarly is the role of spices board. So Ashik, spices board is also a statutory body. यस, It's इट a इज इन कोलकाता, spices इस board. पे केरला से, केरला. टी केरला में बोर्ड भी इन आप कोलकाता, लोगों को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कासरगोड है कि कस समझे? तिरुवन, ऐसा ही गोल गोल कोची बोलते हो होना कि चाहिए। कुछ हो नहीं पाएगा। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, मानसी, इज इट ए स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉट? So statutory. स्टैट्यूटरी बॉडी। एंड कोची, हाँ, देयर इज शलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एंड देयर इज इंडियन ऑयल सीड एंड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी है। तो ये हमें पता ही होने चाहिए, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने जान लिए, बस उसको आप जो है अब जहन में उतार कर प्रयोग में लाइए। सो प्रोसेस फूड्स का डिमांड राइज हो रही है, हेल्दियर फूड ऑप्शंस की हम बात करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत आटा, भारत दाल, भारत राइस ऐसे करके हमने शुरू किया। एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एज फार एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। नेफेड जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव जर्नी में इस तरफ बढ़ा। सो औशिक, what kind of idea and highlight you can go for that? so regarding NAFED promoting of healthy food product, so first is identification of alternative to the food grains, for example millet and pulses, oil seed, etc. It can be promoted. Second would be regarding standardization of the food product, that is Bharat stage, the Bharat rice, Bharat wheat. It can be promoted so that adulteration and other substandard food product can be curbed. Third would be capacity building of the farmers and correct finance would be given.
Add some with regarding missing to the points. forward and Mansi, backward add linkage. some missing points अगर आपको So लगता है. increasing the market access. So NAFED is important role there. Okay. बताइए बताइए. NAFED plays a very important role in the procurement of pulses, and so it can be also used in PDS, just like FCA, so that the protein deficiency can be reduced, as well as we can break rice and wheat cycle in several areas of the country. The cultivation of pulses. Mansi, if we say that India is exporting wide array of items, so India कितनी tariff lines हैं अंदाजन आपके हिसाब से? So tariff lines. भाई टैरिफ अलग अलग होते हैं ना, तो ऐसे कितने हमारे टैरिफ लाइंस होंगे? वास्ट एक्सपोर्ट बास्केट है, सिर्फ आप एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स तो नहीं कर रहे हो जी सर. एक्सपोर्ट्स में, तो टोटल एक्सपोर्ट, टोटल टैरिफ लाइन जो है, टोटल टैरिफ लाइंस कितनी हो सकती हैं अंदाजा? कौशिक. So I think it should be in thousands. वेरी ट्रू. कितने थाउजेंड्स अंदाजा? 5,000 or less than that. कौशिक. हाँ सर, 2 to 3. 10,000 से ज्यादा है. Yes. और टोटल एक्सपोर्ट का कौशिक कितना परसेंटेज है फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का? So close to 750, 34, 2 to 4% होगा सर टोटल. मानसी. So close to 5%. 5%. मोर देन 10%. More than 10. फिर अच्छा, करुणा, इंडिया का जो एक्सपोर्ट लैंडस्केप अगर हम बात करें फूड और एग्रीकल्चर में, तो कौन से आइटम्स है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं? 4-5 आइटम्स बताओ. सब मिलेट कर रहे हैं अच्छा, और सब हॉर्टिकल्चर सेक्टर से कर रहे हैं सब, और वेजिटेबल्स एंड ऐसे ही उसके अलावा सब वेजिटेबल. अच्छा, कर रहे हैं, ठीक है. और बड़ी बात बोलो यार, ढंग सब से. मरीन प्रोडक्ट्स कर रहे हैं. अरे भाई कौशिक, आप बोलिए. सबसे इम्पोर्टेंट Yes. एक्सपोर्ट लैंडस्केप किससे बनता है हमारा? हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? वो जो करते ही है जो बोला इसने, लेकिन और बताइए. सर सबसे इम्पोर्टेंट बासमती राइस, जो बिल्कुल $5 billion से ऊपर है, जो सबसे पहले हम एक्सपोर्ट करते बासमती हैं. राइस करते हैं. और राइस के अलावा मानसी, एक और चीज जिसके बिना कोई ना जी सकता है, Spices, sir. स्पाइसेस. बिल्कुल ठीक कहा. तो पहले सबमरीन में सोचा प्रॉन करो, हो गए. सोचा बाकी सब- करो, ना कि अपनी मेमोरी को यूज करो. मर जाओगे, मेमोरी साथ नहीं देगी. फिर भी सोचोगे ही, सोचते सोचते मरोगे, दुखी नहीं होगे. और मेमोरी ज्यादा यूज करोगे तो दुखी होगे. क्विक थिंकिंग बनो. राइस हो गया, स्पाइसेस हो गया, बफेलो मीट हो गया, शुगर शुगर और ऑयल मील्स. और हमारे मार्केट मानसी, इंटरनेशनल मार्केट कौन कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है जहाँ? So Europe is one of the largest जब हम spices की बात करते हैं. और बांग्लादेश है सर, मिडिल ईस्ट है, मिडिल वेस्ट एशिया हो गया, बिल्कुल जो बासमती राइस हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया, राइस के लिए हो गया, हस्क राइस, टी बिल्कुल हस्क राइस के लिए. बिल्कुल सही कहा. ब्रांड इंडिया को प्रमोट करने का तरीका ही है. हम्म. सो इंडिया की अगर पोजीशन हम बात करें, टॉप 10 आइटम्स विच आर कंज्यूम ग्लोबली, जैसे हम बात करते हैं, तो इंडिया का, जैसे अगर मैं बात करूं पाम ऑयल, तो अगर औशिक मैं पाम ऑयल की बात करूं तो इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा होगा कि इंपोर्ट ज्यादा होगा? से इम्पोर्ट ज्यादा होगा पाम ऑयल, कि 60%. 60% से ऊपर. हाँ, पाम ऑयल डिपेंडेंट है. लेकिन हाँ, लेकिन जब हम बात करते हैं, हम इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट भी तो कर सकते हैं ना उसको, वेदर इट इज रिफाइंड और नॉट. उसके फ्रैक्शंस हैं. तो लेकिन इंडिया का शेयर जो है वो वर्ल्ड इंपोर्ट में कम है उस तरीके से, अगर आप बोलोगे. और ब्रेड, पेस्ट्री, केक, बिस्किट, दैट्स ओनली 0.5. लेकिन आप अगर बात करते हो कि इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड इंपोर्ट्स में, अगर आप बात करते हो सेमी मिल्ड और होली मिल्ड राइस, जो अभी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शंस भी लिए थे और अभी भी है, देयर इज स्टिल कंटिन्यूइंग, मोर देन 36% इंडिया का शेयर है वर्ल्ड इंपोर्ट.
चीज में निग्लिजिबल, जीरो। इसीलिए चॉकलेट वाले बोलते हैं भाई भारत खोल दे दरवाजे। इंडिया इज वेरी लेस चॉकलेट, अभी तो बहुत लेस है चॉकलेट पेनिट्रेशन। क्योंकि सब मिठाई है ना, ऑल्टरनेटिव है यहाँ पर, हाँ, इसलिए चॉकलेट। और ये डॉग कैट फूड ये भी 0.23% के आसपास ही है। चॉकलेट और वो सब भी लेस देन 1% है। तो आपको समझना पड़ेगा, तब आपके आंसर में कुछ आ सकता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया बस, कुछ भी हो गया। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है वो बात करता है लार्जर पिक्चर देने की, यूनैक्टैड, आपको पता होना चाहिए। और फूड प्रोसेसिंग में औषिक, अगर मैं आपसे बोलूं इरेडिएशन टेक्नोलॉजी होती है, इरेडिएशन क्या है वो? से रेडिएशन इज टू रिमूव कंटेमिनेशन, और जो किसको से एक्सपोज किया जाता है, चीज को किससे एक्सपोज किया जाता है? से एक तो यूवी हो गया, दूसरा गामा, यूवी लाइट, गामा एंड रेडिएशन। सेकंड गामा रेडी। एग्जैक्टली, गामा गामा रेडिएशन, रेडिएशन। एग्स हैं, मीट है, फ्रेश, इन सब को ले करते हैं, उससे हमें पता लग जाता है। इसीलिए डब्ल्यूटीओ के एसपीएस क्या है, करोना एसपीएस का फुल फॉर्म? सर नहीं पता है मुझे। मानसी? नहीं पता सर। अरे औशिक? फाइटोसैनिटरी मेजर्स, हाँ एस करेक्ट, एम सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। सैनिटरी पर यस। फाइटोसैनिटरी। व्हाट इज द एक टेक्नोलॉजी का नौशिक, अगर मैं आपसे और पूछूं नाम, एक्सट्रूशन, क्या होता है एक्सट्रूशन? नहीं पता sir। अरे जब उसको आप शेप दे देते हो, जैसे फ्रेंच फ्राई का एक शेप दे दिया, बिस्किट का कोई शेप दे दिया, हम्म। ऐसे कोई भी एक्सट्रूशन, प्रेशर डाला ना आपने उसके ऊपर, हम्म। उसको एक्सट्रूजन है, ये प्रोसेस यूज होता है। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग भी यूज होती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। तो आपको डिस्ट्रिक्ट सोचना है, आपको अपना राज्य सोचना है। कुंडली है, कितना बड़ा हब बन चुका है कुंडली। देन भिवाड़ी, देन इन महाराष्ट्र भिवांडी, देन यू हैव तंजावर, तो ऑलरेडी आई सेड, एंड देन चेन्नई भी बहुत बड़ा हब है। इंडिया इज एग्रेसिवली नेगोशिएटिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद मैनी कंट्रीज, वो भी एक वेलकम स्टेप है। म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट्स हो जाएंगे। एंड आपने जब प्रोडक्ट लिए हैं, जब करो ना तुम, जब कोई जैसे, अक्सर हमारी जब बातचीत हुई तो सुनने में आया कि भाई चोरी छुपे चिप्स खा लिए, चोरी छुपे ये कर लिया वो कर लिया, तो पैकेट भी जब तुम छुपाती हो मान लो, तो उस पैकेट पे कभी तुमने ये लिखे हुए देखा है HACCP? कभी ये वर्ड सुना किसी ने? HACCP कभी किसी पैकेट के ऊपर, किसी फूड प्रोडक्ट के वहां कभी देखा? नो सर। कमाल हो गया, आपने देखा आशीष जी? नहीं sir। हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सर्टिफिकेशन है, ये एसेंशियल होता है फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स में। मतलब कई बार आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तो फूड, आप देखिए प्रोडक्ट्स के ऊपर FSSAI के अलावा कैसे कैसे, जैसे अब रेजिड्यू की बात होने लगी है, व्हाट विल बी द रेजिड्यूल, कितना रेजिड्यू होना चाहिए, इट शुड बी इन ट्रेस। प्रिजर्वेटिव्स की बात होती है, preservatives are really not helpful for us. These are the things we have to understand, and this is very important. कोकोनट का क्रेज जैसे अब इतना बढ़ रहा है, मानसी, कोकोनट से तुम भाई तेल तो बना ही लोगे, और जो कोकोनट आइसक्रीम भी बन जाएगी, कोकोनट ऑयल भी हो जाएगा, कोकोनट वाटर भी अब बहुत चलने लगा है। हम्म। और मानसी बताओ क्या करोगी कोकोनट से? तो कोकोनट बर्फी। अरे वाह, बर्फी, अच्छा ईट और? बनेगी सर। हाँ हाँ, बर्फी और? सर और हेल्दी स्नैकिंग में वी कैन यूज बिल्कुल कोकोनट। बिल्कुल ठीक कहा। और तो कोकोनट चटनी। there is a technology mission basically on coconut which is working on these areas. और कोकोनट चिप्स बनाओगी? चिप्स तो कोकोनट शेल बेस्ड पाउडर बन सकता है। हाँ सर। सर कोकोनट के जो हस्क बच जाते हैं उसको कोपरा, उससे भी हाँ उससे बनता है, उससे यूज तो कर भाई सकते बिल्कुल है। हैं। डोसे जो बनाते कोकोनट हैं, जो के यूज साथ आप करते हैं, कोकोनट के कोकोनट साथ आप कोपरे होते जैगरी और हनी मिला के बना दोगे कुछ भी, हैं। फ्लेवर के साथ बना दोगे, पाइनएप्पल, मैंगो, गोवा, लाइम, ऐसा भी होने लगा है। हम्म। कोकोनट का मिल्क पाउडर की बात हमने की। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कोकोनट चिप्स,
शायद होने चाहिए मेरे हिसाब से, हम्म, खाए तो नहीं। विनेगर हो सकता है, जैसे एप्पल का विनेगर होता है, ऐसे कोकोनट का भी विनेगर हो सकता है। So you have to be very smart in bringing the idea. Okay. औशिक, पीएलआई स्कीम जो है वो, अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कंपनीज, मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कंपनीज कहाँ है इंडिया में, कौन से स्टेट में? और क्या इंडिया के सारे स्टेट्स के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, ऐसा कह सकते हैं हम कि सारे स्टेट्स में एक ना एक या दो हाँ सर। इंडस्ट्री होंगी होंगी पक्का? हाँ सर। अच्छा। हाँ, सारे शहर में होगा सर, एक एक को तो होगा ही। और बोले सबसे आधा का सर तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये महाराष्ट्र, सब अराउंड गुजरात, होगा सर। दिल्ली, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी। गुजरात, दिल्ली, and Uttar Pradesh are very less in that sense because जो मतलब कि पीएलआई, जो मतलब पीएलआई स्कीम की अगर हम बात करते हैं, विच आर कवर्ड अंडर पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है, कैबिनेट ने जिसको अप्रूव किया, उसका आउटले है 10,000 करोड़ से भी ज्यादा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेगमेंट है उसके अलग अलग, फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट्स है, मैरिन प्रोडक्ट्स है, मोजरेला चीज है, रेडी टू ईट भी है। रेडी टू ईट मार्केट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So one district, one product is very very important. It is a phenomenal thing. जैसे बिहार का हमने बात की, मखाना, मखाना किंग करके ब्रांड है नेफेड का खुद का। दिल्ली के बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, यूपी का हनी है, जैसे राजस्थान का कोरिएंडर पाउडर है कोटा का। सो मानसी, गुड़गांव का क्या हो सकता है? सर गुड़गांव में तो the most famous thing is doda sweet. No, no, please, for God's sake, let's talk about आमला जूस। नू और जो बाकी बेल्ट है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सारा ये आमला जूस क्रिएट करता है। महाराष्ट्र इज फॉर रागी फ्लावर, रागी जिसे हम कहते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। मेघालय का स्पाइसी ड्राइड पाइनएप्पल, वर्ल्ड्स बेस्ट पाइनएप्पल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड्स बेस्ट। जैगरी पिकल एंड मुरब्बा फ्रॉम पंजाब। एंड Ashik, what about red gram? From where? रेड ग्राम, Hmm. ग्राम सब मोस्टली मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसी बेल्ट में होना चाहिए। Red gram, black gram, ये सब कर्नाटका, करना। बंगाल, तो कर्नाटका will be there. So there are bodies, there are brands, and there are districts. You must know about the districts like Pali, Devariya, Jhansi. ये कुछ ऐसे नाम है। बालासोर, where is Balasore? Odisha. ओके सर। Which are very much important to showcase that how things move in, and how we have to make sure that complete level comes up. That's what we can say. It is very very important. There is a program called Sufalam, that is you can say a forum for aspiring leaders and mentors 2024, जहां पर इनोवेटर्स और कोलैबोरेटर्स को बुलाया गया FSSAI और उनके साथ। तो करुणा, एक ऐसी चीज जो भारत ना करे तो ही सक्सेसफुल होगा, ये जो हमने सारी चर्चा की इसमें, बताइए। सर अगर ना करे हाँ, ना करें obviously। तो हम एमिशंस और पेस्टिसाइड्स का कंट्रोल की बात कर सकते हैं और कि अगर वो नहीं किया तो सक्सेसफुल नहीं होगा। और डाइवर्सिफाई नहीं किया तो सक्सेसफुल नहीं हुआ सर। फॉर एग्जांपल कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, एमएसपी कहते हैं, हम्म हॉर्टिकल्चर प्रमोट कर सकते हैं, जीआई टैग को प्रमोट कर सकते हैं। हम्म हम्म एग्रीकल्चर में इसको रिन्यूवरेटिव बनाने के लिए बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड नीचे फोकस करना, पर नहीं किए तो फिर घाटा हुआ। फॉर Smart. एग्जाम्पल इनएम हो गया, We स्मार्ट need to be है, smart. We need to be smart in food processing. फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप और बाकी एग्रीकल्चर फोकस करना, पर नहीं किए तो फिर कौन सी, जब मैं कहता हूँ स्मार्ट फूड प्रोसेसिंग, तो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तुम?
So smart technology in terms of monitoring like drones and all of that, in terms of increasing productivity, we can talk about अरे the बड़ी बड़ी एक genetic टेक्नोलॉजी का engineering, नाम बताओ जिसके अंदर ड्रोन ड्रोन सब अपने आप ही आ जाए, the artificial intelligence. और बड़ी का नाम बताओ। IoT. आईओटी, करेक्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज करो ताकि बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। एआई पे उसके अंदर आ ही जाएगा, रोबोटिक्स भी आ जाएगा, ऑटोमेशन भी आ जाएगा, सारी चीजें आप आराम से उसके अंदर देख लोगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की हमने चर्चा की, हमने सारा किया, आप इसको समझ सकते हैं। और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग द क्रिटिकल एलिमेंट इन योर आंसर्स so that you know it makes sense and you do justice with your life and also with your energy. That is very very important, because without that we will not be able to create the level of understanding, confidence, clarity. That's what we can say. अब अगर हम इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कि भाई जो एक इनोवेशन की अगर हम, मतलब इनोवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and in general we tend to bring same kind of ideas even when we are writing something. So innovation in rural development, Ashik, so what are the key areas जहां पर innovation होना ही चाहिए in terms of rural development? So there are several key areas: innovation, agriculture, health, education. Here we Then have to be, here we can be little specific, like renewable energy, specific renewable source of energy, water sanitation. management solution, Yes, sir. community Capacity based building, yes, healthcare, correct, yes. community healthcare, PHC, etc. And so in education, tele-education, even SWAYAM portal, etc. That is there. Then so name, regarding food processing industry, specific. name one of the world's largest poverty eradication program which is being run under the Ministry of Rural Development. Some मनरेगा। बिल्कुल, और कोई? And sir, The PDS scheme. पंडित दीनदयाल बिल्कुल, रूरल लाइवलीहुड मिशन, करेक्ट, अंत्योदय DRL दीनदयाल and DRL. अंत्योदय योजना, यस करेक्ट, करेक्ट, NRLM, National Rural Livelihoods Mission, very very important. And under that, inclusion strategy is being promoted, and it is being worked upon. More than 90 lakh self-help groups are there, 90. मिले मार्केट, मार्केट वो उसके साथ लिंकेज हो, एंड फ्रंट एंड बैक एंड, एज वी जस्ट सेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फ्रंट एंड में वैल्यू एडिशन और मार्केट लिंकेज, और उसके बाद जो है आपका प्रोडक्शन, स्मॉल प्रोडक्शन कलेक्टिव्स जैसे होते हैं, दे आर आल्सो बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जो स्मॉल प्रोडक्शन कलेक्टिव्स हैं, लाइक प्रोड्यूसर ग्रुप्स, जो कि इन्फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से बात की, हाँ भाई ये हो रहा है, ये बेच देंगे, ऐसे होगा, और जैसे ज्योग्राफी बढ़ती जाती है, ये बाद में आप कहेंगे कि यही फेडरेट हो जाते हैं प्रोड्यूसर इंटरप्राइजेस और लार्ज एग्रीगेटर के। सो MOU is signed between ICAR and different groups like conglomerate of civil society organization, and that's how you can say कि पूरा प्रोग्राम होता है। जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, और उसके अंदर वर्ल्ड बैंक की फंडिंग भी आती है, because National Rural Economic Transformation Project, there is something called National Rural Economic Transformation Project. That is how the real things are working. So महिला किसान वो टॉर्च बियरर्स हैं, क्योंकि एंड टू एंड उन्हें सॉल्यूशन समझना है, समझाना है, इंटरवेंशन करना है। ज्योग्राफी को आइडेंटिफाई किया, घरों को आइडेंटिफाई किया, रोल ऑफ पंचायत, कम्युनिटी को आइडेंटिफाई किया। So this is what innovation is there. Human resources are very important. Community resource person are very important. कैसे चलवाएंगे उसको? जैसे आप बोलते हो कृषि सखी, पशु सखी, वन सखी,
यू नो दीज आर द काइंड ऑफ वर्ड्स विच आर वेरी, और इसको कुल मिला के लास्ट में आपका एक बेसलाइन डिलीवरी किया आपने, डेवलपमेंट किया, ट्रेनिंग और कैपेसिटी आर्किटेक्चर को आपने डेवलप किया, और लाइवलीहुड सर्विस सेंटर आपने क्रिएट कर दिया। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, नर्सरी है, सीडलिंग्स हैं, डिस्कशंस हैं, और क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट हो गया। तो इससे लास्ट में बना लखपति दीदी। लखपति दीदी ऐसे ही नहीं बन गया, क्योंकि फार्मर्स फाइंड इट सो डिफिकल्ट टू डिस्पोज देयर प्रोड्यूस। 40-50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर होता है, कैसे देंगे, कब देके आएंगे, कैसे देके आएंगे, उसका खर्चा कौन उठाएगा, वापस क्या आएगा उनके पास, कैसे हो पाएगा। बहुत दुख और बहुत ही मुश्किल बात है, जो हमने बात भी की थी व्हेन वी स्पोक अबाउट मिनिएचर, और व्हेन वी स्पोक अबाउट वेरी वेरी स्मॉल वेयर हाउसेस, जो हमने बात की थी मोबाइल एंड इवन मोबाइल मोबाइल मोबिलिटी की हमने बात की थी इन आवर लास्ट डिस्कशन। सो मार्केटिंग साइड के भी इंटरवेंशन होंगे, पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यूएशन कैसे हो सकता है, लाइव स्टॉक वैल्यूएशन कैसे हो सकता है, कैसे होगा, और फार्मिंग जो हमने बात किया प्रोड्यूसर ग्रुप्स बनेंगे उनकी कैसे होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ओनली गोइंग टू हेल्प। लेकिन जब हम बात करते हैं औषध जुगाड़, हाँ रूरल सर। इंडिया जुगाड़ में नंबर 1 है। आम आदमी की जो एड्रेसेस हैं, चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस करने के लिए जुगाड़ से काम चलता है, चाहे वो फिर बाइसाइकिल पार्ट्स हैं, चाहे वो इरिगेशन सिस्टम्स के डिस्कार्डेड कुछ पार्ट्स हैं, लोकल एंटरप्रेन्योर्स उनको कर देते हैं। तो मल्टीपर्पस जुगाड़ हम बनाते हैं। तो इसी इसके लिए बॉडी कौन सी है औषध, विच इज द बॉडी। So body regarding जुगाड़। हाँ, जुगाड़ के लिए बहुत बड़ी बॉडी है भाई, तो बॉडी ही नहीं मालूम, बताओ। करुणा। सटल टिंकरिंग मिशन हो सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन, NRF, नेशनल रिसर्च नहीं हो, कौन सा फाउंडेशन। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, हाँ, अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब तो बाद में, लेकिन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है ही उसके लिए, NIF जुगाड़ के लिए, बिकॉज इट इज फोस्टरिंग ग्रास रूट इनोवेशन। तो स्काउट करेगा, सपोर्ट करेगा, स्केल करने की कोशिश करेगा। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, लोगों के पास दिल्ली आने के पैसे नहीं है, लेकिन जुगाड़ करके वो चीजें करनी ही करनी है। कृषि विज्ञान केंद्र भी रोल करेगा। तो मशीन्स आर बीइंग क्रिएटेड, जो बहुत ही सिंपल स्मॉल फार्मर्स होते हैं, और मशीन की वो समझ के वो जुगाड़ करके, जैसे मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाई, या फिर आपने रेफ्रिजरेटर बना दिया जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलेगा। और बोलिए। मिट्टी कुल जो हाँ, एग्जाम में बताया था। हमने बात भी की थी। एम्फीबियस बाइसाइकिल जो पानी में तैरेगी। बताइए, जब आप पानी में हर साल बिहार में जब बाढ़ आती है, चंपारण है, बाकी रीजन्स हैं, तो कैसे करेंगे आप। बोट में तो आपको पैसा देना पड़ता है, आप कहाँ से लाएंगे एक्स्ट्रा पैसा। तो इसीलिए उन्होंने जुगाड़ करके साइकिल को ऐसा किया कि बस साइकिल के चारों तरफ उन्होंने रेक्टेंगुलर एयर फ्लोट लगा दिए चारों तरफ, और पानी में साइकिल चला दी। अब साइकिल डूब ही नहीं सकती। अब बताइए कैसे डूबेगी, कन्वेंशनल साइकिल थी। ऐसे ही बाईसाइकिल वीडर बना दिया, बाईसाइकिल चलाया, और उससे वीड निकालती। speed हो हाँ। जाए। ऐसे ही आपने रेन गन बना दी, पानी उसके लिए, स्प्रिंकलर के लिए। तो ये सब जुगाड़ स्प्रिंट। के एग्जाम्पल्स हैं। ट्रैक्टर के जुगाड़ कर दिया आपने, देखिए कैसे करना पड़ता है। बायोगैस प्लांट्स बना दिए किचन वेस्ट से, सोलर लालटेन बना दिया, वाटर सैनिटेशन, लो कॉस्ट ड्रिपिंग। ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि भारत चल रहा है इनसे। इफ यू वांट टू बी अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर, देन embrace it, bring it in your answer somewhere and rush through the success. बायोचार स्टोव्स बना दिए, बायोचार आ चुका है, बायोचार फिल्म में पूछ रहा है, लोग बना रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने केस स्टडी में 2023 से पहले ही डाल दिया था। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जुगाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल्टिवेटिंग मतलब दिस माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं मानसी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके अंदर हमने क्लीन कुकिंग फ्यूल की बात की और स्वच्छ भारत मिशन की भी बात की, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बीइंग राइजिंग, दैट्स व्हाट वी कैन से। ड्रोन्स की बात भी की थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात भी हमने की है, इको फ्रेंडली फार्मिंग की बात भी की है, FPOs की बात भी की है। तो मानसी, अगर मैं बोलूं ई नाम,
ई नाम के 4 काम क्या है बताइए, एग्जाम में सीधा आता है ई नाम के 4 काम। So Charkam first, increasing the wider reach, हाँ मतलब चलो ठीक है, participants, आपका प्रमोशन हो गया, और hmm, एक accessibility, sir, accessibility to direct like digital markets. यानी But इंफॉर्मेशन एसिमेट्री खत्म करना फार्मर और ट्रेडर के बीच में, hmm, कि भाई फार्मर क्या बेचना चाहता है, ट्रेडर क्या लेना है, उसकी एसिमेट्री खत्म कर दिया, जी sir. बहकना आपने रोक दिया। Hmm. और तीसरा, Sir, economic stability, वेरी गुड, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं, price. प्राइस स्टेबिलिटी है उसका काम। Hmm. और So grievance redressal. वो तो होगा ही, मतलब मार्केटिंग ई नाम है ये, आप नाम पे क्यों नहीं जा So रहे? The removal of middlemen. हाँ, मार्केटिंग प्रोसीजर आपने स्ट्रीमलाइन किया, प्राइस स्टेबिलिटी किया, एक इकोनॉमिक और सिमेट्री किया, और क्वालिटी। डिस्कवरी ऑफ द प्राइसेस सर, हाँ वही, प्राइस डिस्कवरी इशू होता है तो राइट। So we have to understand that these are very, very important development. Ashik, what is decentralized renewable energy solution? So decentralized renewable energy means the renewable energy is not produced from the industry on a very large scale. It can be produced from very small home-based system. For example, rooftop solar plant. It is there. Even biogas collective mechanism is this. It is there. Correct. PM Kusum. It is an example. Mhm. Then lift irrigation is an example of decentralized Solar renewable power, solar pumps lift are there. pumps. So these are innovative solutions which you must bring in our solar irrigation pump हो गए। उसके बाद नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो एक बहुत एम्बिशियस प्लान है, वो भी विल ओनली बी एबल टू मेक अ डिफरेंस अगर वो वहां तक पहुंच पाए। उसके बाद जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का रोल है इसमें, जो आप बात करते हैं इरिडा और बाकी का। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कैसे टोटल एनर्जी जो कंज्यूम होगी वो उसका सर्टेन पार्ट मस्ट कम फ्रॉम सर रिन्यूएबल एनर्जी। सर आफ्टर मतलब एक पर्टिकुलर डिमांड है, फॉर एग्जांपल 100 किलोवाट, अगर अगर कोई कंज्यूमर डिमांड करते हैं तो जो लोकल डिस्कॉम होते हैं दे हैव टू गिव सर्टेन फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इसको रिवर इसको बोलते हैं और ऑब्लिगेशन इंडिया है। जो है प्रेसिडेंट भी रहा है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का, इंटरनेशनल एजेंसी का इंडिया रहा है। अगर करुणा मैं बोलूं, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जो पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? 4 ऑब्जेक्टिव। सो उनको स्टोरेज को लेके एंड ट्रांसपोर्टेशन को लेके। अरे ऑब्जेक्टिव भाई, ऑब्जेक्टिव। हम्म, बताइए आशिक, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? सो ऑब्जेक्टिव लॉन्गर टर्म में वी हैव टू मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, 5 मिलियन टू टन रिप्लेस टारगेट, फॉसिल फ्यूल। रिप्लेस फॉसिल फ्यूल स्लोली, एक ऑब्जेक्टिव यानी क्लीन फ्यूल देना है हमारे। क्लीन फ्यूल, उसके बाद रिडक्शन ऑफ क्रूड जीएचजी, ऑयल का इंपोर्ट कम करना है हमें। हाँ ग्रीन हाइड्रोजन हमें एक ऑप्शन प्लस बनाना है। सर एम्प्लॉयमेंट 2030 जनरेशन तक एक एग्जाम्पल। 2030 तक मानसी कितना ग्रीन हाइड्रोजन हमें प्रोड्यूस करना है? So green hydrogen तो नहीं पता सर एग्जैक्ट। 5 मिलियन टन सर। 5 million ton is very true, wonderful. So that's how it is. So financial barrier, grid integration, technology and infrastructure gap, these all things we have to understand that they are the constraint also and they are opportunities also. इंडिया का पॉलिसी लैंडस्केप चेंज हो रहा है, इंडिया इंटरनेशनली कोलैबोरेट कर रहा है, G20 है, इरेना है, जैसे मैंने बताया। So that is only going to make sure that life is different, otherwise it is very, very you know, far away dream. So digital technology पे क्वेश्चन हर बार आता है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी आता है। हम वर्ल्ड में नंबर 1 है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में, और मोबाइल डेटा के थ्रू भी हमारा बात है, हम मोबाइल डेटा भी हमारा मोस्ट इनएक्सपेंसिव है। तो मानसी, अगर मैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बात करूं, हिंदुस्तान में कितने कितने किलोमीटर बिछ चुकी है और कितने ग्राम पंचायत जुड़ चुके हैं? सर किलोमीटर्स
So few lakhs kilometers. करेक्ट, 6 लाख किलोमीटर्स। 6 कितने lakh. ग्राम पंचायत जुड़ चुके हैं? So close to I think 30,000. So 1,60,000 के 2 आसपास है। लाख, 2 लाख से भी ज्यादा, 2 लाख। 2,50,000 है टारगेट। हाँ, कह लो आप 2 लाख के आसपास तो हो ही गया है। तो यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोर है, वो कोर यूटिलिटी बन जाए और गवर्नेंस और सर्विस डिमांड से मिले। बस ये दो चीजें हैं, ये चीजें लेके आएंगी डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। यानी कोर में सिटीजन के आ जाए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से गवर्नेंस और सर्विस जुड़ जाए जब मांगी मिली, और इससे एम्पावरमेंट हो। 3 चीजें हैं बस। आईसीटी टूल का यही क्वेश्चन आता है। तो यानी पोर्टेबल हो, क्लाउड में अवेलेबल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए, इंटीग्रेटेड सर्विसेज होनी चाहिए, और रियल टाइम अवेलेबिलिटी सर्विस की मिलनी चाहिए। यही डिजिटल लिटरेसी मिशन करेगा, तभी होगा ये डिजिटल लिटरेसी मिशन। डिजिटल क्रिएशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन उससे जुड़ा हुआ है। सो इसीलिए एडटेक और साथ में हेल्थ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हेल्थ में आशा का रोल आ जाता है, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट का, और टेलीमेडिसिन हमने बात की। ई संजीवनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेलीमेडिसिन, ई संजीवनी। तो मानसी, ई संजीवनी प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, सेकेंडरी के लिए, कि टर्शरी के लिए? तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी होना चाहिए। अच्छा, तो यानी सब प्राइमरी। मानसी जी कहना चाहती हैं कि ई संजीवनी प्रोग्राम के थ्रू ही जो है कॉम्प्लेक्स लेजर सर्जरी, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा तो को जो है, कंसल्टेंसी में तो हो सकता। ई ई संजीवनी जब हो रहा है तो क्या बोलोगे? सर दवाई ववाई देने के लिए, दवाई कंसीडर बात सेकेंडरी करने। कैसे ले गई तुम उसके अंदर? है अब किसी को कराना है कॉस्मेटिक लेजर गोरा चेहरा, कैसे होगा वो ई संजीवनी में? तो प्रोसीजर तो नहीं हो सकता, तो टेलीमेडिसिन। तो फिर कहाँ है आप? करुणा मत बनिए। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मेडिकल एडवाइस आप सीख कर सकते हो, बस दैट्स ऑल इट कैन हैपन। एग्रीकल्चर में भी 70% हमने बात किया, पूरा डिपेंडेंट है। सॉइल टेस्टिंग, माइक्रो फाइनेंस, वेदर अपडेट। तो ई गवर्नेंस जैसे अब एक कर्नाटक गवर्नमेंट का एक ऐप है ई सहमति, ई सहमति ऐप। तो ये मानसी किसने डेवलप किया होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हर सरकारी वेबसाइट के नीचे उसी का नाम होता है। मतलब मुझे देखे हुए भी कितना जमाना हो गया, लेकिन मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, उसके बिना कोई सरकारी वेबसाइट खुल ही नहीं सकती। नहीं अभी। आप बताइए आशिक। हाँ, सर सरकारी वेबसाइट खोल नहीं सकता, कौन बना सकते? एक ही इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं मुझे लगता है। बताइए बताइए। एनआईसी हो गया सर, नेशनल बिल्कुल इन्फॉर्मेटिक्स। एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, बिल्कुल सही बात है। एनआईसी ही है, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर करता है उसके लिए, और वो सबके लिए करता है। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए जैसे ई श्रम पोर्टल है, कौन सा मिनिस्ट्री है? करुणा, ई श्रम पोर्टल का मिनिस्ट्री कौन सी है? So Ministry of Labor. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। सही बात है। ऐसे ही आप वुमेन एम्पावरमेंट को सोचोगे तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। तो डिजिटल एम्पावरमेंट इज नॉट ऐसी बड़ा बड़ा कुछ भी, आपको बेसिक, आपको क्लैरिटी से लिखना पड़ेगा कि कैसे, जो हमने अभी पीछे चर्चा की या फूड प्रोसेसिंग की भी चर्चा की, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। आईटी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उन्हें पता होना चाहिए थोड़ा सा। डर भगाना पड़ेगा, भय। सब कुछ सीख के आपका डर नहीं भागता और आप सोचते हो सब लोग लैपटॉप और सब लोग फोन यूज कर लेंगे, कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। सो रूरल कम्युनिटीज को मजबूत करना पड़ेगा विदाउट एनी स्पेंडिंग। पैसा नहीं है उनके पास करने के लिए, पैसा देके नहीं सीखेंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू मेक देम रियल टाइम एजुकेशन उनको कैसे दे। तो ड्राइवर ऑफ रूरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए
ये इनोवेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो सेक्टर हमने बात किया, लाइवलीहुड है या टेक्सटाइल है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर, एनर्जी, हैंडीक्राफ्ट, वाटर मैनेजमेंट, सब आ जाएंगे। आर्टिजन, एक्वाकल्चर, सारे के सारे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। तो औशिक, एक ग्रुप है जिसका नाम है रूटैग, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। हम्म। तो ये जो है किसने स्टार्ट किया होगा? रूटैग, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। इसने का मतलब है प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, एनजीओ है, क्या है ये? एनजीओ होना चाहिए सर ये, रूरल इट टेक्नोलॉजी। वाज स्टार्टेड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। सरकार को थोड़ा विश्वास करके सरकार को समझिए, जाना सरकार को चाहते हैं तो समझना पड़ेगा। ओके। रूटैग समझ लीजिए, ये सारी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर गोइंग टू कम बैक अगेन। 2003 से है, सोचिए आप। मोर देन 800 एनजीओ फिर इससे जुड़ेंगे, उनके इनोवेटिव प्रोजेक्ट होंगे, वो काम करेंगे। आप बात समझे? जैसे अभी हमने बात की थी ई नैम की, तो मानसी को बताना चाहिए था कि कोई प्रोडक्ट की जब गेट से एंट्री होती है और उसकी फिर उसके बाद उसका हार्मोनाइजेशन पुटअप कर दिया, फिर उसके बाद उसका ऑनलाइन ट्रेडिंग होगा, फिर वेइंग होगा, उसका इन्वॉइसिंग होगा, फिर वो ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी और माल बाहर, बस हो गया। ईना, ये है ईना। निंजा कार्ट एक इनोवेशन इसलिए बना, फार्मर प्रोड्यूसर का, रिटेलर और लोकल रेस्टोरेंट्स के लिए। एग्री टूरिज्म एक अदर दूसरा एग्जाम्पल है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की चर्चा हमने पहले भी की है। औशिक, एक उसका नाम बताइए जो मतलब कि जिससे आपको एक्यूरेट वेदर इंफॉर्मेशन, आप किसान हो, आपको मिल जाए, बेनिफिशियल भी हो एनिमल मैनेजमेंट के लिए, और साथ में आपको मतलब डिसीजन लेने में भी डे टू डे हेल्प करे एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में। और आज की डेट में कम से कम 5 करोड़ फार्मर उसको डाउनलोड करके बेनिफिट कर रहे हैं। एग्रो, वीकेंड से एग्रोमेट सर्विसेज जो है वो एडवाइजरी उससे ली जा रही है। बताइए क्या है सर उसका? सर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंदर में मेघदूत होगा आप सर। मेघदूत, करेक्ट। मेघदूत। मेघदूत है उसका नाम। हम्म। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने मानसी एक बनाया रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंटिंग करने के लिए, ग्राम सभा की प्रोसीडिंग्स के लिए। तो ग्राम सभा की प्रोसीडिंग्स के लिए जो ये ऐप बनाया, क्या नाम है इसका? नहीं पता सर। अंदाजा तो लगाओ कौशिक, करुणा। है ग्राम सभा निर्णय, निर्णय ऐप। सोचिए आप, एक ऐप है, वही डाउनलोड हो गया और काम। हम्म। आपके पास निर्णय लेने में जितना टाइम लगा रहे हो उससे ज्यादा जल्दी गांव वाले कर देते हैं। ऑपरेशन फ्लड की जब हम बात करते हैं औशिक, तो ऑपरेशन फ्लड से मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आए हैं। डेयरी और फार्मिंग इंडस्ट्री की हाँ आपने सर। एमएसपी की बात ही किया था। तो पहले तो ये बताइए कि जो है अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया में, तो मिल्क में हम नंबर 1 है। तो 5 स्टेट ऐसे कौन कौन से हैं जो मोर देन 50% मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, मतलब नेशन का मिल्क प्रोडक्शन? और सर उनमें उसमें सबसे आगे, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कौन करता है? राजस्थान है सर, जो यूनिक था। सबसे ज्यादा राजस्थान। राजस्थान है, फिर यूपी होना चाहिए सर, हम्म। फिर एमपी हो सकता है सर, गुजरात हो सकता है, बिल्कुल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र। और इंडिया जो है वो डेयरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी दबा के करता है। हम्म। क्वेश्चन वही है, लेकिन जो हमने बोला कि ऑपरेशन फ्लड मानसी कौन से साल में शुरू हुआ था? तो अराउंड 1980s। 1970 में 70। स्टार्ट हुआ था। और आज की डेट में मतलब आपके पास ये बताइए कि कितने मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं औषित जी? सर मिल्क प्रोड्यूसर मोर देन 8, आज हाँ सर 10 करोड़ है आज ही, 10 100 मिलियन। हाँ, मतलब मिल्क प्रोड्यूसर्स अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ आज की डेट में तो हो गए, बिल्कुल सही बात है। और आपके पास विलेज कोऑपरेटिव्स का भी एक पूरा सेटअप है। 2023 की अगर आप बात करते हैं, तो हमारे पास जो पर कैपिटा कंजम्पशन है फ्लूइड काउ मिल्क की, कितना है वो पर कैपिटा कंजम्पशन फ्लूइड काउ मिल्क का मानसी? फ्लूइड काउ 300। मिल्क का पर कैपिटा कंजम्पशन
कितना है हमारा अंदाजन? इसमें तो आइडिया नहीं। अंदाजा बता। सर डिवाइड करना 220 मिलियन टन बाई 1.4 बिलियन तो जो अराउंड 60 kg है हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन, 60 kg। चाइना से ज्यादा है, ब्राजील से ज्यादा है, रशिया से ज्यादा है, लेकिन बेलारूस का 113 है, न्यूजीलैंड का 103 के आसपास है, ऑस्ट्रेलिया यूके का भी है, और यूएस का भी अराउंड 62 kg है, तो हमसे ज्यादा है। तो मतलब कि इंडिया लीड तो करता है, लेकिन कंट्री जो है एफ्लुएंट नेशन से अभी बहुत पीछे है। वी आर फार बिहाइंड द एफ्लुएंट नेशंस इन दैट कॉन्टेक्स्ट। एंड यूरोपियन यूनियन जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ पर यूरोपियन यूनियन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर डेयरी काउस। इंडिया जो है, मतलब इंडिया को भी देखना पड़ेगा, इंडिया का एवरेज यील्ड पर काउ जो है ना बहुत कम है। वहां तो मशीन लगा देते हैं, और इटली और ये सब में तो बस दूध ही दूध निकलता है फिर। और दूसरा जो है एवरेज डेली मिल्क यील्ड ऑफ एक्सोटिक या क्रॉस ब्रीड काउस का जो है वो भी कम है ना, हमारा बहुत कम। इंडिया का अराउंड 9 kg है, और यूरोपियन यूनियन का 22 kg है, 22 kg। तो इसीलिए द प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम जो है वो डेयरी को अनसस्टेनेबल बना देता है फॉर द नेशंस फार्मर्स। इसलिए ज्यादा होना चाहिए, क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म होनी चाहिए, हाई यील्ड होना चाहिए, वेरी वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऑटोमेटेड मिल्किंग सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट से लगाया और हो गया। हमारे यहाँ तो ऐसा हो नहीं पाता, लेबर एक्सपेंसेस ज्यादा है। सेंसर्स होने, मिल्क सेंसर्स होने चाहिए। रॉबर्ट्स आ गए हैं टी कप्स के साथ, सो दैट मिल्क कैन बी टेकन अप। आर्टिफिशियल आर्म्स भी आ गई हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इंडिया का तो बहुत ओल्ड है ट्रेडिशन इन टर्म्स ऑफ इंडियन डेयरी इंडस्ट्री का, सिंस वेरी वेरी एंशियंट टाइम, सिंस हड़प्पन सिविलाइजेशन आप कह लो। So data driven decision making is going to help us. Precision farming is the future. उससे काम हो पाएगा। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमें करनी पड़ेंगी, एंड इन्वेंट्री जो है और सप्लाई मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए फ्यूचर लाइज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन, रोबोटिक्स, और जो हमने ऊपर इनोवेशंस की बात की, देन ओनली यू कैन से वाइट रिवोल्यूशन जो है डेयरी उसका बढ़ेगा, एंड देन ओनली इट विल हैपन। इसमें एक रोल जो है डेयरी बेस्ड स्पोर्ट्स का भी हो सकता है, और न्यूट्रिशन का भी। स्पोर्ट्स ड्रिंक आ रहे हैं, उनको और बढ़ाना पड़ेगा। और हमें मानसी ऐसी कौन सी चीज है जो डेयरी में मतलब डेयरी एंड एग्रीकल्चर, बेसिकली लाइफ स्टॉक जो जुड़ा हुआ है, और वहां पर जो है हमें किसी भी तरीके से वो रोकने की जरूरत है। कैसे रोकें उसको, ये बहुत प्रॉब्लम है। तो क्या रोकने बेसिकली की जरूरत है? लाइफ स्टॉक? लाइफ स्टॉक है जो, या फिर जो फूड डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स हैं, हाँ जी। वो एक बहुत ही क्रिटिकल ग्लोबल प्रॉब्लम के जिम्मेदार भी हैं। तो वो रोकने की जरूरत है। क्या है वो प्रॉब्लम? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और हार्मोन्स का यूज होता है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स। वो तो ठीक है ही है, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम, ये तो आपने जो कहा ये थोड़ा है, लेकिन और सिंपल। So और zoonotic diseases नहीं, spread. आप बताइए और हम्म हम अक्सर पढ़ते हैं। तो सर cruelty birds और जो killing of होता है। सर डिजीज का बात कर रहे हैं सर, फूट एंड डिजीज माउथ की डिजीज बात नहीं कर रहा, नहीं। कोई डिजीज की बात नहीं कर रहा। आई एम जस्ट आस्किंग यू a global, genuine global problem which is intricately linked somehow with the livestock, with the animals. सर वो मीथेन एमिशन है, हाँ, मीथेन एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस। बहुत ज्यादा इन्हीं से है ना। ये हमें देखना पड़ेगा, तो इसके हमें सोचना पड़ेगा कि हम उसको रोक नहीं सकते वैसे तो। So this is all we had to discuss for the day in this very very detailed and in-depth discussion. So Mansi, what new and drastically different did you learn? So today we focus a lot upon the bodies and institutional stakeholders in the agriculture sector. So relating them with different ministries. So this is one new area or dimension that I'll be focusing upon in future as well. Ashik, for you? Sir, same sir, regarding the new institutions such as NIFTM and etc.
how it can be linked, and what are the mandatory provision with regard to FSSAI and others. How we can derive from the name only, make doodh of a Bakis. Karuna? Sir, I learned about different initiatives that are already in action on ground, and also how to link the unconventional topics like Jugaad with food processing sector. Okay. Wonderful. Thanks to one and all. And we will take up more critical areas in our next theme. Thank you very much.